सो पिछली वीडियो का रिस्पॉन्स तो फिनोमिनल था एंड आई एम रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड, मगर अब बारी आपकी। सो आप लोग काफ़ी इमोशंस फील कर रहे होंगे, एक्साइटमेंट होगी, एंथुजियाज्म होगा, मगर थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी होगी। मुझे सीखना है बट इट लुक्स कॉम्प्लिकेटेड। आईएसओ का मतलब क्या है? एंड डू आई रियली हैव टू लर्न आफ्टर इफेक्ट्स? मगर मेरे पास तो सिर्फ 7 साल पुराना लैपटॉप है, मैं कैसे काम करूँ? I want to be out in the open, not be locked inside a room all day. Roll करते हैं. That's a bit dramatic. खैर इसको सही करते हैं हम. Tidip, tidip. Missed the first time. Anyways, I look like one second. I was gonna say much better, but slightly better. Anyways, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। सो इंट्रो टाइटल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि दिस इज़ ए सीरीज ऑन हाउ टू बिकम ए क्रिएटर। जितनी मेरी नॉलेज है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट अ डेकेड इन दिस अरीना, बीइंग बोथ बिहाइंड द कैमरा एंड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, एज यू कैन सी। क्या डूज एंड डोंट्स हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एंड व्हाट यू शुड डू टू बिगिन. Which is exactly this episode. And if you hope to gain some technical knowledge on how to become a content creator, then this episode is not for you. Sure, I can tell you right now that I am shooting on an A7 III, having my script written on a Razer laptop with a 200D on a softbox and a Rode VideoMic Pro and a P300 and a softbox and another light there, another light there, a light there, blah blah blah. ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा अगली एपिसोड्स में. Why, what, how, कैसे, क्यों, कब, all of that stuff will come later. इस एपिसोड में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ फाउंडेशन की. Stuff that you need to cement and keep you grounded so that you can go the distance. मैंने ये गलतियाँ की हैं and I've learned from these mistakes. And now I'm really happy and content with where I am. It's a sustainable model. I love what I do and I wouldn't change a thing. So where to begin? This step is the big one. इसके अंदर ज़्यादातर लोग कंफ्यूज्ड होते हैं. इट्स द बिगिनिंग ऑफ 2022. स्टार्टिंग समथिंग इज़ नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, आप YouTube पे जाएं, जस्ट टाइप इन व्हाटएवर यू वांट टू लर्न. अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है और आप वाकई सीखना चाहते हैं तो आप सीख लेंगे. देयर इज इनफ इंफॉर्मेशन आउट देयर. द इंटरनेट इज़ एन अबंडेंट प्लेस फॉर यू टू स्टार्ट डूइंग व्हाटएवर. सो having said that, getting into it is easy. तो start कहाँ से करें? Now this is something that you have to explore for yourself. इसका जवाब आपको कोई और नहीं दे सकता. You have to just start doing things. Meet new people, try new things. If you like to play music, गिटार उठाएं, फ्लूट उठाएं, सितार उठाएं, कुछ भी, and just start getting into music. You'll figure out in a few days or even a few weeks if it's for you or not. Same is the case if you want to get into baking or you're into medicine, या आपको पेंटिंग का शौक है, या you're into coding. What's new in the world? Cryptos and NFTs, those are a thing right now. What's metaverse? उसकी भी एक दुनिया है, क्या आप वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं? There's so many things. Maybe you're into gaming, maybe you want to give lectures online, maybe you are a person who just wants to speak on a podcast and just address the audiences. मैं इस स्टेप को और आसानी से नहीं बता सकता. आप घर पे बैठे वीडियोस देखते रहें, आर्टिकल पढ़ते रहें, लोगों की बातें सुनते रहें और एब्जॉर्ब करते रहें. यू विल नॉट फिगर दिस आउट अंटिल यू स्टार्ट डूइंग स्टफ. आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, वो समझ में आएगा आपको तभी. विच ब्रिंग्स मी टू स्टेप 2, which is exactly what I just said. Likes versus dislikes. Now a funny thing happens when you start doing things. आपको या तो वो बहुत पसंद होती है चीज़ या आपको नहीं पसंद होती. And I'm not talking about peer pressure कि आपका दोस्त कर रहा है तो आप उसके साथ मिलके you're enjoying and having a good time. I'm talking about कि अगर आप अकेले बैठे हों and if you were left in your space to do that for a month, dare I say even for several months or even a year alone, would you still continue to do it? If the answer is yes, तो फिर आपको वो करना पसंद है. अगर no, तो then you're finding reasons to get out of it. अब बीच में there's a lot of gray matter. There's a lot of stuff in the middle, जो कि दोनों स्पेक्ट्रम के बीच में आता है. You neither like it nor hate it. अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो स्विमिंग इज समथिंग आई लाइक, ट्रैवलिंग इज समथिंग आई लाइक, सॉल्विंग पजल्स इज समथिंग आई लाइक, इवन गेमिंग इज समथिंग आई रियली 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 लाइक.
मगर मैं इनमें से कोई भी चीज़ हर दिन नहीं कर सकता। I love the occasional gaming session, be it a third person exploration like GTA or a first person shooter like Doom Eternal or something. I love these things. Magar, this is not something that I would do on a daily basis. Sure, I enjoy traveling, gaming, swimming. मुझे इसमें और कुछ excitement feel नहीं होती। I do feel these things when I'm making art, when I'm creating something. I feel like कि मेरे लिए through creation, through content, I have a message that I want to convey. I have an artistic expression. मेरे लिए ये exploration and इसी field के अंदर, इसी दुनिया के अंदर चीज़ें सीखना on a day-to-day basis is something that I really enjoy and love. If you were to leave me for a month or even a year inside a room to be doing this all day, I would gladly do it. If you haven't figured out what you really like, then आपको step 1 repeat करना पड़ेगा. Start exploring, reset, try new things, keep on doing until you find what you love. If you figure that out and you found something that you really love, the step 3 is finding your unique voice, your individuality, your uniqueness. So great, you figured out what you really love और आपने काम करना शुरू कर दिया. You're spending days, weeks and months doing that thing. आपको feedback भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है. लोग कह रहे हैं कि this is really what you should be doing and you're really great at it. मुझे मज़ा भी आ रहा है and I really am learning a lot, मगर I'm not breaking through. There's still something missing. तो chances ये हैं कि you are not really tapping into what you really are. आपकी स्किल सेट्स क्या हैं, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. हो सकता है कि बचपन से आपके अंदर एनर्जी बहुत हो और आप वो एनर्जी और वो एक्साइटमेंट अपने कंटेंट के थ्रू लाना चाह रहे हैं. मे बी दैट्स योर थिंग और मे बी यू आर द स्मार्ट वन. बचपन से आपने ये प्रूव कर दिया है और सारे अतराफ में आपकी यही कहते हैं कि यार आयशा का दिमाग बहुत बड़ा है. मे बी आप बहुत डिटेल ओरिएंटेड हैं. हो सकता है कि आपका ह्यूमर बहुत अच्छा हो या आप बहुत टेक्निकल हो. अहमद बहुत तेज है. मे बी आपकी एस्थेटिक्स बहुत अच्छे हैं. इनमें से कोई सी भी चीज़ हो, ज़रूरी ये है कि वो आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी या ट्रेट हो. मेक श्योर दैट दिस इज समथिंग दैट कम्स फ्रॉम विद इन यू. अगर आप किसी को देख के कॉपी कर रहे हैं या उसकी एनर्जी या उसकी ह्यूमर या उसका इंटेलिजेंस कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, सो यू वोंट गो फार. यू विल रन आउट ऑफ कॉन्टेंट, यू विल रन आउट ऑफ आइडियाज़, यू विल रन आउट ऑफ द स्पार्क. सो बेहतर ये है कि यू टैप इनटू योर ओन इंडिविजुअलिटी एंड गो क्रेजी. व्हिच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट स्टेप. Now this is one of the most important steps. क्योंकि ज़्यादातर इस स्टेप में फेल हो जाते हैं. Why? Because we give ourselves excuses. Nobody likes my content. Nobody shares it. Nobody comments. Only my friends like my work. I'm too old. I'm too young. I don't have enough money. I'm not good looking enough. I'm not smart enough. I don't have the best camera. And I really think about what people will say. Stop. Stop comparing yourself with others. एक्सक्यूज़ देना बंद करें, अपने आप को डाउट करना बंद करें, हेटर्स को सुनना बंद करें. स्टॉप ड्राउनिंग इन द नॉइज. स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस. स्टार्ट मेकिंग टाइम फॉर योरसेल्फ. अपने आप पे फोकस करें. स्टार्ट लर्निंग न्यू स्किल्स. डोंट टेक क्रिटिसिज्म पर्सनली. अपनी सेहत पे काम करें. स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ. क्योंकि आजकल देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस अराउंड अस. ट्रस्ट मी, आई हैव बीन देयर. मैंने अपने अतराफ में सबकी बातें सुनी है सिवाय उसकी जो सबसे बेहतर जानता है. You know what's best for you. And eventually अपनी गट फीलिंग को कबर्ड में बंद करके भूलने के बजाय उसको बाहर निकालें, उसको तवज्जो दें और आहिस्ता आहिस्ता करके you will eventually start to become your own person. और उसी वक्त कंटेंट आपका बनेगा मज़ेदार. ओके, सो आप कह रहे हैं आपने सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए मगर फिर भी आप फंसे हुए हैं and you're not breaking through. सो उसका तो मैं एक ही जवाब दे सकता हूँ और वो जवाब है मुबारक हो. अब आप इस स्टेज पे आ गए हैं अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी के अंदर कि यू आर रियली एंजॉइंग व्हाट यू डू. यू आर स्टैंडिंग आउट बिकॉज ऑफ योर इंडिविजुअलिटी. यू आर लिसनिंग टू योरसेल्फ एंड दैट्स अ ब्यूटिफुल थिंग. अगर आप इस स्टेज तक पहुंचे हैं तो कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि दिस इज अ ग्रेट प्लेस टू बी इन. एंजॉय द प्रोसेस एंड कीप डूइंग व्हाट यू डू. क्योंकि this is what I truly believe in. Right, it's all great, sunshine and rainbows, मगर आपने एक important बात नहीं की, वो ये कि पैसे कैसे बनाएं इन सब चीज़ों से. So इसका सीधा और आसान जवाब मेरी तरफ से ये है कि I have no idea. I am not an expert in this field. अगर मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ तो I will only be wasting your time. थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट मैं आपको ये दे दूँ कि when I started getting into this field,
फिल्म मेकिंग, कंटेंट क्रिएशन, व्हाटएवर। मैंने ये स्टार्ट नहीं किया था फॉर द सोल पर्पस ऑफ मेकिंग मनी। आई स्टार्टेड दिस बिकॉज दिस इज समथिंग आई रियली एंजॉयड, इट फैसिनेटेड मी। मुझे कहानियों का बहुत शौक है, मुझे फिल्मों का बहुत शौक है, मुझे आर्ट से बहुत लगाव है। आई एंजॉय मेकिंग थिंग्स and I enjoy learning to make things. I'm not going to sit here and preach something that I don't believe in. I truly believe that this is not what it's all about. I truly believe in the craft. I truly believe in telling stories and my art. And I'd say it's worked out fine. हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कर सकता हूँ, वो ये कि मैं आपको सारी secrets बता सकता हूँ. I can tell you the hows, the wheres, the whats, the whys. And this is the point of this series. So अगली एपिसोड में हम बात करेंगे गियर के बारे में, how I edit my videos, what is VFX, how do I color grade, what is sound design, and overall how to do it professionally. कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स से आप अपना कंटेंट को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं. ऑल ऑफ दैट इज गोइंग टू बी शेयर्ड इन नेक्स्ट फ्यू वीडियोस. सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें. और हाँ, इफ यू वांट अ लिटिल बिट मोर, तो देयर इज ए वे यू कैन गेट इन ऑन ऑल द सीक्रेट्स. आई हैव ए पेट्रियन एंड उस पेट्रियन के अंदर मैं सारी की सारी डिटेल्स काफ़ी एक्सटेंसिव तरीके से वो सब बताता हूँ. स्टेप बाय स्टेप VFX breakdown, how I shot an entire video, सारे के सारे BTS and a lot of giveaways. अगर आपको वो सब चाहिए तो फ़ौरन जाइए patreon.com/Danish Hassan पे और वहाँ पे आपको एक्सेस मिलेगा इंस्टेंटली ऑन ऑल ऑफ द स्टफ आई हैव ऑलरेडी पुट आउट. मैं एक घंटे की एपिसोड्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ. वन स्पीक्स अबाउट फोटो मैनिपुलेशन इन डिटेल और एक मेरी यूट्यूब वीडियो का पूरा ब्रेकडाउन है. अगर आप सोच रहे हैं कि पेट्रियन एग्जिस्ट क्यों करता है, इट्स अ अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू सपोर्ट दिस चैनल, फॉर मी टू कंटिन्यू टू मेक दिस कॉन्टेंट फॉर यू गाइज, एंड बी क्योंकि आई कैंट पुट एन आवर लॉन्ग वीडियो ऑन दिस चैनल. इस चैनल पे आई गिव यू मोर क्यूरेटेड कॉन्टेंट, शॉर्टर वीडियोज दैट आर मोर आर्टिस्टिक, मोर एस्थेटिकली प्लीजिंग एंड फन टू वॉच. सो या वंस अगेन हिट दैट बेल आइकॉन ताकि आप नोटिफाइड हो जाएं ऑन द नेक्स्ट वीडियो अपलोड. Until then, this is Dan out.